Hello, welcome to all students. And today we are discussing about some MCQs and some main concepts related to our chapter number 8, Biomechanics. Chapter 8, Biomechanics. Biomechanics and some questions. Before proceeding our questions, now summarize our whole chapter in 10 to 15 minutes. Now summarize our whole chapters. First we have discussing about our topic is biomechanics and meaning of biomechanics. Biomechanics means study of analysis of human movement pattern in sports. Study of analysis of human movement pattern in sports. ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न को स्पोर्ट्स में एनालाइज करने की जो ह्यूमन मूवमेंट्स हैं, ह्यूमन मूवमेंट्स पैटर्न्स को एनालाइज करने की प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट. स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स पैटर्न इन स्पोर्ट्स दैट इज कॉल्ड biomechanics. That is called biomechanics. Means we analyzing particular movement. We can say that we analyze force, internal external force. Yeah, we can say that action directed by force and our body movements, our body doing some movements. So that is called biomechanics. The study of all movements, all forces exerted by our body and other things, and with the help of force we are doing movements. So that is called biomechanics. The study of branch of related to human motion, analysis of human motion, and study of human motion. That is called biomechanics. And we have discussing about importance of biomechanics. Some importance of biomechanics I count one by one. First, improvement of sports technique को improve करना. Then improvement of equipment and facility को develop करना. Then minimization of injury, reduce injury minimization. We can say that chances of reduce injury. Now development of new methods को develop करना. Now improvement of training. Then understanding of human movement, body movement. Understanding of human body movements. That is some basic summary. We can say that basic importance of sports biomechanics and help of sports biomechanics and different sports. Now we are discussing about our body have 3 plane and 3 axes. First plane, sagittal plane, frontal plane, and transverse plane. That is 4 plane. Plane means is imaginary surface that divide body in different parts, left to right, lateral to posterior, upper and lower. So that imaginary surface, we can say that imaginary surface that divide our body in 2 parts, and all the movements occur in the around of this planes. That is called different body planes: sagittal plane, frontal plane, and transverse plane. And now three axes also, different 3 axes also. Sagittal plane, to sagittal axis also occurs. Sagittal frontal plane, the frontal plane. Then transverse plane, the vertical axis. Transverse plane means just like this, vertical axis. So when axis and plane, हमेशा जो प्लेन हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉल करेगी क्या? एक्सिस फॉल ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. प्लेन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट फॉल करेगी क्या? एक्सिस फॉल ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. वो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट एक्सिस फॉल करेगी. सो हियर different 3 axes and 3 movements. So all 3 axes and 3 movements, different 3 axes and 3 movements, all exert in one point. जब तीनों प्लेन एक साथ मिलते हैं, जब तीनों एक्सिस एक साथ मिलती है, तीनों प्लेन और तीनों एक्सिस टोटल 6 जब एक साथ मिलते हैं, जहाँ एक पॉइंट एग्जैक्ट होता है, मीन्स क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को. यहाँ पर प्लेन मिल रहा है, यहीं पर प्लेन मिल रहा है, ये वर्टिकल प्लेन हो, यहाँ से ये एक्सिस जा रही है, तो एक सभी को मिलाकर एक सेंट्रल पॉइंट क्रिएट होता है. क्रिएट ए सेंट्रल पॉइंट that is called center of gravity. हमारी प्लेन से डिवाइड कर रही है फ्रंटल प्लेन, देन दिस डिवाइड कर रही है ट्रांसवर्स प्लेन हियर. नाउ परपेंडिकुलर को एक्सिस हियर, फ्रंटल प्लेन एक्सिस हियर, sagittal प्लेन एक्सिस हियर. ऐसे डिवाइड करके जब बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है, मगर ऑल द एक्सिस and all the body, all the axis and all the plane exert in one point. We can say that intersecting in one point.
दैट इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पर सारी प्लेन और एक्सिस एक साथ फॉल करती हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। उसे बोलते हैं हम क्या, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वी कैन से दैट इन शॉर्ट फॉर्म सीजी, सीजी ऑफ योर बॉडी। हमारी बॉडी का सीजी या सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर बॉडी, जहाँ पूरी प्लेन एग्जिस्ट करती है। और जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स, ऑल मूवमेंट्स रिलेटेड टू आवर बॉडी पार्ट्स be used in different walking, talking, we can say that in our body language, and walking, and running styles, and perform skills in different sports, basketball, football, and any sports, any doing movements, any doing movements by the help of your arms, your legs, and your body. So all the movements occur in only 3 plane and 3 axis, around the 3 plane and 3 axis। जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे ऑकर्स होते हैं हमारी 3 प्लेन और 3 एक्सिस के बीच में, मतलब उनकी सराउंडिंग, उनके अराउंड में, सभी उनके अराउंड में और उनके प्लेन पर और अराउंड में सारे मूवमेंट्स वहीं पर एग्जिस्ट होते हैं। कहाँ पर, हमारे सर पे, जो हमारी प्लेन है उस पर, और हमारी जो एक्सिस है उनके सराउंडिंग में सारे मूवमेंट्स वहीं एग्जर्ट होते हैं। सो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स भी हैं। तो जो सारे मूवमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, जो हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 मूवमेंट्स हैं। हमने बात की थी 4 मूवमेंट्स की। 4 मूवमेंट्स, फ्लेक्शन जब एंगल डिक्रीज हो जाता है, एक्सटेंशन जब एंगल बढ़ जाता है, एबडक्शन जब कोई बॉडी पार्ट आपके बॉडी से दूर चला जाता है, एडक्शन जब कोई बॉडी पार्ट आपके बॉडी के क्लोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। सो 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होकर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स occur in your body, that is called flexion, extension, adduction and adductions in your syllabus, but more types of movements, like some thumb, like this thumb is called a position। मुंह का फाड़ना, प्रोटेक्शन, पास में लाना, रिट्रैक्शन, ठीक है ना। एंकल का ऐसे अंदर की ओर होना, इन्वर्जन। एंकल का बाहर की होना, एवर्जन, ठीक है ना। एंकल का सीधा होना, प्लांटर फ्लेक्शन। एंकल के ऊपर जाना, डोर्सिफ्लेक्शन। जो ऑल डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन, सरकमडेक्शन, ये बहुत सारे मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं। और जितने भी सारे मूवमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ओनली ऑकर इन योर डिफरेंट प्लेन्स एंड डिफरेंट एक्सिस। सभी जो मूवमेंट्स हैं वो तो या तो प्लेन में हो रहे हैं या एक्सिस में हो रहे हैं। ये यहीं प्लेन होते हैं, ये एक्सिस होते हैं, तो वहीं पर एग्जर्ट होते हैं सारे मूवमेंट्स, जो हमें डिफरेंट प्लेन और एक्सिस पर, इसके अलावा कहीं नहीं होते। तो जितने भी मूवमेंट्स हैं टोटल, आप नेक इधर करो, ऊपर नीचे करो, बाय करो, तो ये प्लेन में हो रहे हैं, प्लेन और एक्सिस के सराउंडिंग में। सो 3 टाइप के प्लेन है, 3 टाइप के एक्सिस है, और मूवमेंट्स कई टाइप के हैं, मगर हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 टाइप्स के मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। ना हमारा न्यूटन्स लॉ, अब न्यूटन्स डिफरेंट न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से जब बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब कोई बॉडी मूवमेंट में रहने की कोशिश करेगी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे ही बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। इन डिफरेंट इसके एग्जांपल थे, जैसे बैट का हेडिंग करना, कोई स्प्रिंटर रनिंग करते हुए जाना एंड लाइन तक, एंड लाइन के बाद थोड़ा मूव कर देना, जब स्टार्टिंग पोजीशन जब स्टार्ट करते हैं, कोई स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग एग्जैक्ट पोजीशन में स्टार्ट करना, दैट इज अ डिफरेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल, जितना फोर्स लगेगा उतना एक्सीलरेशन बढ़ेगा, जितना कम फोर्स लगेगा उतना एक्सीलरेशन घटेगा। तो जैसे ही बॉल हिट कर रहे हैं बहुत फोर्स के साथ, तो बॉडी का जो एक्सीलरेशन या बॉडी की स्पीड है बढ़ जाती है, बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट मोर फोर्स मोर एक्सीलरेशन, लेस फोर्स लेस एक्सीलरेशन, मोर मास लेस एक्सीलरेशन। ज्यादा वजन होगा, ज्यादा मास होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, एंड लेस मास मोर एक्सीलरेशन। मास कम होगा, वजन कम होगा तो वजन कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो अपोजिट रहते हैं, मास इसके एक्सीलरेशन के 10 अपोजिट रहता है और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू ma मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन की डिफरेंट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है, दूसरे बॉडी को फोर्स लगाती है, तो वो बॉडी भी उल्टा हम पर फोर्स लगाती है, जिसे कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन
now another thing is friction. जब कोई बॉडी में फोर्स लग रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? स्विमिंग विद स्ट्रोक्स, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, देन इसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक, देन इसके बाद बटरफ्लाई, ठीक है ना। ये डिफरेंट स्विमिंग के क्या हैं? डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं जो उस पर अप्लाई होते हैं, स्विमिंग पर अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या है? सबसे ज्यादा स्विमिंग में अप्लाई होता है। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑल एक्टिविटी जितनी हमारी बॉडी में सभी में अप्लाई होते हैं ये सारे फोर्स। नाउ हियर अब बात करते हैं जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। जहाँ फर्स्ट लॉ लग रहा है वहां पर एक और फोर्स एग्जिट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी वहां पर एग्जिट हो रहा है, वी कैन से दैट एग्जिस्ट हो रहा है फ्रिक्शन भी। ये ऑकर फ्रिक्शन, जब कोई फोर्स मूवमेंट कर रही है कोई बॉडी, तो किसकी पॉसिबिलिटी में कर रही है? फ्रिक्शन कहीं ना कहीं एक सरफेस से दूसरी बॉडी सरफेस कांटेक्ट है तभी बॉडी का मूवमेंट हो पाता है, अदरवाइज बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। विदाउट कॉन्टेक्ट एनी वन बॉडी टू अदर बॉडी मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जैसे हमने देखा स्पेस में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता, सिर्फ घूमते रहते हैं वहां पर, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, ग्रेविटी नहीं है। मगर हमें सरफेस में, हमें अर्थ में जब तक कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में है तो तभी मूव करेगी जब फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा दोनों सरफेस के बीच में, तभी कोई मूवमेंट और कोई स्किल्स पॉसिबल है इस अर्थ पर। अदरवाइज विदाउट फ्रिक्शन कोई थिंग्स है, मतलब जनरल डेली लाइफ रूटीन से लेकर अब कुछ भी एक्टिविटी देखो वहां पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो फ्रिक्शन आल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। नाउ फ्रिक्शन जो है वो दो उनके बीच में, सरफेस के बीच में लगता है। अब जो इस दो टाइप से फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मींस एट स्टेशनरी पोजीशन पर, डायनामिक फ्रिक्शन मींस इन फ्रिक्शन इन ए मूवमेंट पोजीशन पे। जब कोई मूवमेंट में फ्रिक्शन लग रहा है उसे कहते हैं क्या? डायनामिक फ्रिक्शन। नाउ हम बात करते हैं रफ एंड रफ सरफेस, स्मूथ एंड रफ सरफेस एंड स्मूथ एंड स्मूथ सरफेस। सो फ्रिक्शन दो तरह की सरफेस होती है, एक तो रफ और रफ सरफेस होंगी, एक स्मूथ रहेगी, एक रफ सरफेस रहेगी, और एक स्मूथ और स्मूथ दोनों स्मूथ सरफेस रहेंगी। तो स्मूथ सरफेस, स्मूथ और रफ सरफेस, और रफ सरफेस दोनों रफ सरफेस रहेंगी, और स्मूथ और रफ सरफेस रहेंगी, और स्मूथ सरफेस रहेंगे। सो फ्रिक्शंस इनमें ऑकर्स होता है। स्टैटिक पोजीशन जो रहता है, स्टैटिक पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन, जब फोर्स कोई एक्सर्ट होता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शंस। एंड देन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टेशनरी पोजीशन पर लगता है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रिक्शन। एंड स्टेशनरी फ्रिक्शन जो है वो मोर पावरफुल रहता है, यहाँ पर स्टेशनरी फ्रिक्शन लगता है जो मोर पावरफुल रहता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब स्टेशनरी पोजीशन पर लगे, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रिक्शन, मोर पावरफुल देन द डायनामिक फ्रिक्शन। बिकॉज डायनामिक फ्रिक्शन में क्या होता है? डायनामिक मीन्स मूवमेंट में जो फ्रिक्शन हो रहा है, डायनामिक मीन्स मूवमेंट में जो फ्रिक्शन हो रहा है। और जो मूवमेंट में फ्रिक्शन होता है तो वहां पर क्या दो टाइप्स के मूवमेंट होंगे, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, देन फ्लूइड फ्रिक्शन। फर्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है तो उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंड रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल कर रही है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। एंड नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन, जब फ्लूइड में कब कोई फ्रिक्शन लगे, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। सो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो कौन सा फोर्स आता है? सबसे बाद में आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक के फ्रिक्शन के बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो रहता है रोलिंग फ्रिक्शन। एंड फिर इसके सबसे कम जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो रहता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो सीक्वेंस में से चलते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रोलिंग फ्रिक्शन, देन से एट लास्ट सबसे कम जो रहता है वो फ्लूइड फ्रिक्शन। वी कैन से दैट वीकर फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। सो ये थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन डायनेमिक में है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक स्टेशनरी पोजीशन पर है।
नाउ डिफरेंट रोल्स हम स्पोर्ट्स में देख चुके हैं फ्रिक्शंस के। जैसे हॉरिजॉन्टल बार पर जिम्नास्टिक जो करते हैं तो उनमें लाइम पाउडर की यूज़ करते हैं। लाइम पाउडर की यूज़ क्यों करते हैं? डेवलप द फ्रिक्शन। वेट लिफ्टर लाइम पाउडर की यूज़ करते हैं, चूना का वाइट चूना का यूज़ करते हैं ताकि इजीली को वेट कैरिंग कर सकें और फ्लोर के साथ वेट को इजीली लिफ्ट कर सकें या वेट को डाउन कर सकें, ये मतलब होल्ड कर सकें, ग्रिप अच्छी स्ट्रॉन्ग बन सके, तो वो क्या है? चूने का उपयोग करते हैं। देन जिम्नास्टिक में पैरेलल बार में भी जिम्नास्टिक में पाउडर का यूज करते हैं ताकि पैरेलल बार में मूवमेंट हो सके ना। इसके बाद आपका चूने वाला, देन आपके अब जब देखो जूडो में भी यूज करते हैं। देन इसके बाद जो क्रिकेटर्स हैं वो भी चूने वाटर का यूज करते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रही, जो ग्लव्स पहनते हैं। देन इसके बाद जो स्पाइक्स होते हैं डिफरेंट गेम्स में, उनमें नील से लगे होते हैं, वो भी फ्रिक्शन को डेवलप करते हैं, ठीक है ना। सरफेस रहती है एकदम स्मूथ, चिकनी सरफेस नहीं करते, रबड़ की सरफेस बनाते हैं। जैसे बास्केटबॉल कोर्ट है तो उसमें ये सिंथेटिक बनाएंगे तो रबड़ की बनाएंगे, क्यों? क्योंकि डेवलप द फ्रिक्शन को डेवलप करने के लिए। ये डिफरेंट एग्जाम्पल एप्लीकेशन हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मूवमेंट है इन मूवमेंट द डिक्रीज एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। द मूवमेंट कॉल्ड डिक्रीज एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। जब दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल डिक्रीज हो रहा है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन मूवमेंट। द एंगल डिक्रीज बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, इट इज कॉल्ड फ्लेक्शन मूवमेंट। Where angle reduced between two body parts, that is called flexion movement. Now, अब जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन ने किसमें डिस्क्राइब किया था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी बुक में उसके कौन से तीन लॉ मिले हैं? कौन से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसमें प्रेजेंट है ये? उसकी जो बुक है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, आइजैक न्यूटन की जो बुक है उसमें इन तीनों लॉज का जिक्र किया गया है अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला सेज, मैथमेटिकल फॉर्मूला सेज दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हियर। Decrease in angle between femur and tibia. Decrease in angle between femur and tibia. It is movement is called flexion movement. जब टीबिया कौन सा हमारे नी के नीचे जो बोन हमारी नी के नीचे जो हड्डी है वो टीबिया है, और फीमर जो दोनों मिलके कौन सा जॉइंट बना है? नी जॉइंट बना रही है। सो नी जॉइंट पे जब कोई मूवमेंट ऑकर हो रहा है, नी बेंड हो रहा है, सो ऑन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट रिड्यूस गैप बिटवीन टीबिया एंड फीमर। तो reduce gap between tibia and femur, to decrease angle, it is called flexion movement. Because flexion movement definition says that reduce the angle between tibia and femur bone. Reduce the angle between tibia and femur bone. So tibia और femur bone में angle reduce होता है दोनों के बीच में, that is called flexion movement. Now अब दूसरा एग्जाम्पल है क्रिकेट बॉल का। जब when cricket ball force exert on cricket ball, more force exert on cricket ball higher the speed which ball move toward boundary, जो हायर स्पीड से जाती है बॉल उस पर मोर फोर्स एक्सर्ट होता है। सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड, वी कैन से दैट दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ। मीन्स ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सीलरेशन बढ़ेगा, more force more acceleration, less force less acceleration. So in cricket, the greater the force exerted by a bat on ball, the higher in speed which ball move toward the boundary. This force is called second law of motion. more force लगेगा तो ज्यादा acceleration होगा, means ज्यादा बॉडी की स्पीड बढ़ेगी. So that is called second law of motion. Now third question, swimming. We can say that, अब मैं आपको पहले बता दूं, ऑल जो मूवमेंट्स हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के, वो स्विमिंग के सारे स्ट्रोक्स में लगते हैं. स्विमिंग में जहाँ बढ़ रहा है स्विमिंग, सो अप्लाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जब स्विमिंग में प्रोपेल फास्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोपेल फास्टर मीन्स आगे की ओर बढ़ते हैं फास्टर स्पीड के साथ. तो इफ सी पुश द वाटर फास्टर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब वाटर को हम मोर फोर्सफुली बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करें
सो हमारी बॉडी की स्विमिंग है, बॉडी टू फॉरवर्ड डायरेक्शन भागती है, तो गेट प्रोपेल फास्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ शी पुश वाटर फास्टर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जितना फास्ट हम बॉडी को पीछे पुश करेंगे, वाटर को पीछे पुश करेंगे, हमारी बॉडी उतना ही मोर फॉरवर्ड मूव करेगी। सो बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई, जब भी आप किसी बॉडी पर इक्वल फोर्स लगाते हो, एक्सर्ट करते हो किसी बॉडी पर, तो उतना बॉडी आपको भी फोर्स लगाएगी। जब बॉडी पर किसी को फोर्स लगा तो उतनी ही बॉडी आप पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो सेम जब हम वाटर में पुश करते हैं, मोर फोर्स एक्सर्ट ऑन वाटर, सो वाटर भी आप पर फोर्स जनरेट करता है, फोर्स लगाता है, वाटर भी आप पर फोर्स डेवलप करता है। तो जहाँ वाटर आपको फोर्स डेवलप कर रहा है, तो वो क्या है, जब आपने वाटर पर लगा तब तो वाटर आपको फोर्स डेवलप कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इनका मैं कहना है जो भी कोई एक्शन करते हैं उसका एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट, उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है। इन स्विमिंग में कोई सा भी स्ट्रोक, चाहे बैकवर्ड ले लो, बैकवर्ड ले लो, फ्री स्टाइल ले लो, कोई सा भी स्ट्रोक से ले लो। नाउ थर्ड आपका है विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन कौन सा है? फर्स्ट जो स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, देन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है स्टेशनरी पोजीशन को जो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज मोर पावरफुल। देन इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो डायनेमिक में, उसके बाद उससे कम जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा है, उससे कम स्ट्रॉन्ग थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम स्ट्रॉन्ग रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे जो वीक रहता है वो सबसे कम जो रहता है वो रहता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शंस मोर वीकर कंपेयर टू अदर फ्रिक्शंस, सो दैट इज डिफरेंट। अब इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन है विच ऑफ दिस टाइप फ्रिक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर गिवन बिलो। सो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा फ्रिक्शन स्ट्रॉन्गर है? तो रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन या ऑल ऑफ द इक्वल स्ट्रॉन्ग? तो ऑल ऑफ द इक्वल तो होगा ही नहीं होगा। सो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यदि अब क्वेश्चन जहाँ पर ये बने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फॉलोइंग इज वीकर, मोर वीकर, मतलब सबसे ज्यादा वीकर कौन सा फ्रिक्शन है? मोर वीकर फ्रिक्शंस, मोर वीकर देन अदर्स, मोर वीकर देन अदर्स, ये वीक देन अदर्स। जो कौन सा फोर्स फ्रिक्शन है सबसे ज्यादा वीक? फ्लूइड फ्रिक्शन। उससे फिर थोड़ा सा वीक रोलिंग फ्रिक्शन, उससे भी थोड़ा सा, उससे फिर थोड़ा कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम जो वीकर कौन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अपोजिट साइड में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वीकर के हिसाब से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मोर वीकर कौन सा है देन मोर स्ट्रॉन्गर कौन सा है। अब नाम आपका थर्ड एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ दीज मेजर इज वे ऑफ डिक्रीज फ्रिक्शन, मीन्स इनमें से कौन से हम यूज करते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पाइक ऑन द सोल ऑफ फुटबॉल शूज, जो स्पाइक्स में सोल में जो स्पाइक्स रहते हैं फुटबॉल शूज में या एथलेटिक में या क्रिकेट में, तो स्पाइक्स क्यों रहते हैं? डेवलप मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स डेवलप करने के लिए स्पाइक्स लगे रहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। इन्होंने बोला कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन कौन से, मतलब कौन कौन से मेजर्स हैं, यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है फ्रिक्शन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ चॉक पाउडर ऑन द हैंड और फिट बाय जिम्नास्ट, वेट लिफ्टर और रेसलर जो रहते हैं वो चॉक पाउडर का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं? डेवलप फ्रिक्शन, ना कि रिड्यूस करने के लिए। सो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। यूज रफ टायर इन रेसिंग बाइक, रेसिंग बाइक में रफ टायर यूज होते हैं ताकि इजीली फ्रिक्शन होकर इजीली स्पीड बढ़ सके और ज्यादा मूव कर सके। तो ये भी नहीं हो, क्योंकि वो रफ टायर जितनी रफ सरफेस होगी वो उतना ज्यादा, जितनी रफ सरफेस होगी वो उतना ज्यादा क्या डेवलप कर रही है? मोर रफ सरफेस, सो मोर डेवलप फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप। यूज नैरो बोट इन रोइंग, तो इसमें से कौन सा मेजर है जो फ्रिक्शन को कम कर रहा है? नैरो बोटिंग, मीन्स जो देखा होगा जो नेहरू कप जो होता है बोटिंग का, नेहरू कप जो केरला में होता है उसमें बोटिंग की ऐसे एकदम नैरो शेप रहती है, गाड़ियों के आगे भी क्यों डाउन रहता है। हर जो स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट्स साइकिल है हम आगे की ओर झुकते हैं वो डाउन रहते हैं, और उनकी बाइक का मुंह ऐसे रहता है, नैरो रहता है, बिकॉज रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो सब एप्लीकेशन यूज। स्पोर्ट्स बाइक में, स्पोर्ट्स कार में भी डाउन रहता है आगे से, क्यों? क्योंकि इजीली एयर को कट कर सके, इजीली एयर की फ्रिक्शन को लेस कर सके। सो इस रीजन से वहां पर नैरो रहता है। तो ऐसे इसमें यूज है, जिसमें क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ दीज मेजर्स इज वे टू डिक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन करने का कौन सा मेजर है? तो लास्ट ऑप्शन सही होगा, यूज नैरो बोट इन रोइंग। रोइंग में नैरो बोट यूज करते हैं, पतली बोट यूज करते हैं ताकि एयर के फ्रिक्शन को इजीली काट सके, एयर के फ्रिक्शन को इजीली कट कर सके और बॉडी के जो मूवमेंट है वो इजीली फॉरवर्ड हो सके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है?
फ्रिक्शन का। अब जहाँ फ्रिक्शन से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, अब जो फ्लूइड रहता है, मीन्स हम जो कोई ऑयल या ग्रीस यूज करते हैं, या वी कैन सी दैट कोई ऑयल यूज कर रहे हैं, सो डिफरेंट उसमें so, क्यों यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं किस लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऐसे हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, वो सारे साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। उनमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो फ्लूइड भी क्या काम करता है, जब जॉइंट एक दूसरे से टकराएंगे तो घिसेंगे तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होगा, तो इसलिए इनके बीच में जो गैप है वहां पर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। वो मूवमेंट के लिए हेल्प, साइनोवियल हेल्प टू मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ताकि इजिली बॉडी के मूवमेंट हो सके, फ्रिक्शन कम लगे, इजिली बॉडी मूव कर सके। तो ये डिफरेंट फ्रिक्शंस के एग्जांपल हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और बाकी हम टुमारो डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।